Yes, sir. Go ahead. Can I start? Yeah, yeah. Go ahead. You can start. You can start in English itself. No problem. Yeah, yeah. Namaste, Bante ji. Namaste. Namaste. So, I have been going through little mental turmoil for some days. Otherwise, I had been sailing very navigating in my life. I cannot say perfectly, but dodging the situations. I was doing everything well, but one of sudden, two, three things happened in my life. Actually, 2, 3 days ago, I was a bit of, means under tension. Lot of tension was there, and somehow I could not follow my Sila. Today, I had, means should I means express some personal things, little bit not very personal, but No, can I? I have started recording, so I can cut that. Ah, okay, all right then. So what happened, I could not follow my. I was engaged in some heated argument today, very bad, but I could not control, my the emotions, and so this happened. My day went by like this today. Okay. Okay. No, no problem. No problem. I was morning, since morning means for last 3, 4 days I have been under means immense stress. But I could not cope with this today. When something happened, I means both parties vented out the anger, so I could not follow the Sila today. So what could be means is it possible? Because I would like to tell, some my antecedents also. I can I was a very quite means very short temper and angry person. But since I have started doing these things, so it has means remarkably has gone down. But I cannot say I have tamed it or it is been, निरोध हो गया ऐसा नहीं है. Still I am facing so many problems. So वो जो है ना, this is nothing to do with sila. This is something to do with dvesha. okay, yeah, Okay, so that is a different thing. So sila is for, let's say if we take 5 sila. So हमारे पास अगर लेते हैं, first sila is panatipata. So you are not done that, meaning you are not killed anyone, yeah, right? Adinna dana, you are not stolen anything, yeah, and sexual misconduct, kameshu yeah, michachara, that you are not done. Okay, musavada, that is telling lies, maybe, may not be. Okay, in the fit of and anger, in I haven't done that too, but my words were very harsh. ha, Means in a retaliation, yes, very yes, yes, when the thing went up, I could not control it. correct, So, right. So, harsh yes, go ahead. all agree up means What is that? using harsh word. Oh, Harsh word so is there. It is a part of the sila only. So we will come to that. The harsh uh, word comes when you have anger. yeah, there was anger. Yes, only then only you get harsh words. So we Yeah, have to tackle that different way. So out of 5 sila, at present you have not broken any one of them as per the 5 sila. What you have broken is in Vachi Sankhara, where you have 4 of them, but is Musavada, telling lies, that you have not done. Harusavacha is what you have done, that is, you have had harsh speech. Pisunavacha is telling one against another. That is called as favorite speech, और जैसे एक आदमी के ऊपर कुछ लांछन डालना जो होता है, दैट इज व्हाट इट इज. एंड संप फलाप मतलब ऐसे वैसे बात करना, बकवास की बात करना, दैट यू आर नॉट डन. gossiping. Gossiping, that you are not done. Yeah, The only thing you have done today
is harsh speech. Yeah. Okay. So now, what is the solution to this or this Yes. Sila? That is what we need to know. Milind ji, namaste. Yes, sir. Namaste. Namaste, namaste. Namaste, sir. Sorry, I could not wish you. अरे वो not, it is not necessary, sir. नहीं नहीं, फिर भी आप बुजुर्ग है तो विश तो करना पड़ेगा। ठीक है सर। हिंदी में करिए सर, अभी सर भी ज्वाइन हुए हैं, हिंदी में करिए फिर। हाँ हाँ, मैं हिंदी में ही करूँगा, नो प्रॉब्लम। तो हाँ सर। तो ऐसा है कि पहला ये, जैसे मैं अविनाश जी को कह रहा था कि जब भी हम रिट्रीट में बैठते हैं, जैसे शिविर में बैठते हैं, वहाँ पे वातावरण बन जाता है, वहाँ पे सील तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हम 10 दिन का शिविर कर रहे हैं या 20 दिन या 30 दिन या 45 दिन या 60 दिन का अगर हम करेंगे, उसमें यह है कि मैं एक रूम में बंधा हुआ आराम से बैठूंगा और मैंने पंचशील ले लिया है, बात भी नहीं करूंगा, तो जो उलझन है, मन का जो प्रॉब्लम है, वो मुझे खुद निपटाना है, किसी से बात करना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ सेंसेशन के ऊपर देखना है। जब भी हम बाहर आ जाते हैं, जैसे हम वो जगह से अपने घर आ गए और दुनियादारी का चालू हो गया। अविनाश जी, आप जिएंगे 100 साल। सर 100 साल में बहुत ज्यादा दुख मिलेगा। हाँ, वो तो दुख तो जैसे पैदा हुए वहीं से चालू हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर मेटा ब्लेसिंग्स। नहीं, अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे कि आपका जो प्रश्न है उसके बारे में चालू किया था। जी जी जी। प्रश्न चालू नहीं किया था मैंने, वो विपश्यना का चालू किया था। तो जब भी हम बाहर आ जाते हैं, हाँ। उसमें क्या होता है कि दुनियादारी जब भी आती है, घर का माहौल हो या पड़ोसियों का माहौल हो या ऑफिस का माहौल हो या कुछ तो हो, जुड़ जाते हैं। राइट सर। जब भी जुड़ जाते हैं तो मन के अंदर जो है वो आ जाएगा। ये चक्कर हर किसी को होता है जी। तो इसके लिए पहले हम वहां पे सीख के आएंगे। आने के बाद हमें एक सुत्ता बहुत बार देखना पड़ेगा, वो है दुच्चरित विपाक सुत्ता। ठीक है जी सर। तो इसमें क्या होता है कि बुद्ध भगवान ने क्या किया है कि पानातिपात से लेकर अदिन्ना दाना, फिर कामेशु मिच्छाचार, फिर मूसावादा, पिसुनावाचा, फरुसवाचा, संपफलाप, फिर ये सुरा मेरे मज्जप मद्दठान, इन्होंने ये सेट लिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सील और समाधि दोनों प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी मेरा मन का जो विचार है, जो गुस्सा आता है या ऐसा भड़क जाता हूँ या ऐसा कुछ कर देता हूँ, वो कम होता जाएगा, रोज कम होता जाएगा। ऐसा नहीं कि आज ही मैं करूँ आज ही निकल जाए, वो तो नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा प्रैक्टिस चालू होता है कि 2 हफ्ते यही करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे गोयंका जी जैसे बताते हैं कि आप सांस के ऊपर कायम इसके रखो या जागृत, अवेयरनेस का मतलब है जागृत। तो जागृत होके ये देखना है, सजग होके देखना है, वो भी एक सती का ही गुण है। तो ये देखना है। उसी तरह हमें मन में डर महसूस करना है, नहीं तो वो नहीं होने वाला। तो दुच्चरित विपाक सुत्त जो है वो डर का माहौल अंदर डाल देता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सुत्ता है प्रैक्टिस करने के लिए, पूरा दिन के लिए। तो हम विपश्यना तो कर दिए, आनापाना सती कर दिए,
विपश्यना हम कर रहे हैं, जो गोयंका जी ने जो सिखाया है, गुरु जी ने जो सिखाया है वो हम कर रहे हैं। पर जब भी हम दुनियादारी के साथ करते हैं तो वो बहक जाएंगे। जब भी बहक जाएंगे तो पूरा अपना जो सील है वो टूट गया। कुछ ना कुछ तो टूटता ही रहेगा और वो गया, मतलब समाधि गया। ऐसा नहीं है कि जो हम सीख के आए वो सही नहीं है, वो हम सही तरह से सीख के आए हैं, पर वो माहौल यहाँ पे नहीं है, यही चक्कर है। अगर वो माहौल यहीं पे होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमें वो माहौल क्रिएट करना है दुच्चरित विपाक सुत्त से, ये पहला इंपॉर्टेंट है। तो पहले मुझे वो करना पड़ेगा। जब भी मैं वो करता हूं तो मन तुरंत शांत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम उसका लेते हैं, उसका मैं बताता हूं। तो ये है अंगुत्तर निकाय में आता है 8.40। अगर आपको देखना है तो अंगुत्तर निकाय 8.40, इसको कैसा करना है मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, तो पहले 10-15 मिनट या 1 घंटे जब भी हम आनापानसति करते हैं, मतलब पहले हम करेंगे 5 सील को से प्रारंभ करेंगे, या नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स वहाँ से चालू करते हैं, समझिए। फिर पानातिपात वेरमणि वगैरह वगैरह कर लेते हैं। फिर आधा घंटा या 1 घंटा का हमने आनापानसति किया। इसको करने के बाद, मतलब सवेरे जब भी 1 घंटे का हमने वक्त लेके आनापानसति किया, उसके बाद मुझे ये सेंसेशन का जो विपश्यना है उसके बदले में ये करना पड़ेगा। वो जगह पे जहाँ पे मुझे सेंसेशन देखना है, विपश्यना करना है, वो जगह पे ये करना पड़ेगा। कैसे? तो पहली बात ये है कि वो कहते हैं कि पानातिपात वेरमणि सिक्कापदम समाधियामि करना चाहिए, पर मैंने वो नहीं किया। तो मुझे कोई जानवर या प्रेत ऐसा मिलेगा तो मन में वो डालना पड़ेगा। मतलब कल मैंने झूठ कहा, परसों मैंने वो कहा, उसको मत लेके आना है। वो लेके आएंगे तो इमेजिनेशन हो जाएगा वो और चौपट हो जाएगा। अभी का इस वक्त का प्रेजेंट मोमेंट मन प्रशांत है, क्योंकि मैंने आनापानसति गुरु जी का किया है, मन प्रशांत है। अभी मन प्रशांत में अगर इसको डालूंगा, जैसे एक मेरे पास क्या कहते हैं कि पॉट है, पानी डाला है, मिट्टी है, पानी डाला है, प्रॉपर एनवायरनमेंट है, तो मैं कुशल चित्त को उसमें डाल रहा हूं। तो क्या होगा, वो आराम से आ जाएगा। ठीक है, वो करना है। तो पहली बात ये है कि ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं किसी का हत्या करता हूं, मैं करूंगा नहीं वो अलग चीज है, पर गुस्से में आके मैंने किसी का हत्या की तो क्या होगा? अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बन के पैदा हुआ तो मेरा लाइफ स्पैन, मेरा आयु जो है वो कम रहेगी, मतलब मेरा मृत्यु जल्दी हो जाएगा और बहुत बुरी तरह से होगा। ऐसा मुझे हर लेके आना है। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो। इसको कहते हैं कि अनुसति, मतलब स्मरण करना। ऐसा हो जाएगा, भैया देख ले, तुम मारेगा, पीटेगा, किसी का कुछ हत्या वत्या करेगा, तो समझो ये आपको होने वाला है।
तो मन छोड़ देता है उसको, उसी वक्त छोड़ देता है। ऐसा नहीं कि बाद में वो नहीं पकड़ेगा, वो छोड़ देता है। कितने घंटे छोड़ सकता है? बहुत घंटे, क्योंकि आप स्मरण करते रहेंगे। यहां पे सती आना चाहिए। सती जब भी आती है कि मैं भूल गया, फिर लेके आना है, फिर भूल गया, फिर लेके आना है, फिर भूल गया, फिर लेके आना है। जैसे हम सांस के ऊपर लेके आते हैं, जैसे हम सेंसेशन के ऊपर लेके आते हैं, उसी तरह हमें मन में ये लेके आना है कि अगर मैंने ये नहीं किया, क्या कहते हैं, अगर मैंने ये सती नहीं डेवलप किया, तो मेरा जो है वो नरक में भी हो सकता है, प्राणी लोक में भी हो सकता है, या प्रेत लोक में भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बुद्ध भगवान कह रहे हैं। तो मैं बुद्ध भगवान को मानता हूँ, वो जो कहा है वो सच है। क्योंकि सम्मा दिट्ठी का एक और मतलब ये है कि परलोक है और ये लोक भी है, आगे का लोक भी है और ये लोक भी है। मतलब जो कर्म का जो है उसको भुगतना ही पड़ेगा, ये सम्मा दिट्ठी है। तो ये मन में दोहराने से मन का जो मैल है कम होता जाएगा। ये पहला हो गया। पहला क्या कहते हैं, ये सील का। दूसरा सील अदिन्न दान। ये मैं कर सकता हूं। शायद किसी का 100 रुपए नीचे गिरा है, 100 रुपए नहीं, $100 गिरा है। मैं जा रहा था, किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, वो नीचे गिरा है। क्या करूं? ले लूं या छोड़ दूं? ये दुविधा आ गई। अब कोई भी नहीं है वहां पे, कोई भी नहीं है, लौटाने के लिए भी कोई नहीं है। तो मैंने चोरी नहीं किया है, पर लालच आ गया। तो लालच जाने से चोरी हो सकती है। $100 चाहिए मुझे, तो मैं पहला होगा, इसको मैं 83 रुपीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो होता है 8,300 रुपए। तो लगेगा अरे यार 8,300 रुपए क्या करूं? ले लूं, छोड़ दूं, ले लूं, छोड़ दूं। ठीक है, पहले ले लेते हैं, बाद में इसका देखते हैं कि किसको दे। दान कर लेता हूं, बुद्ध भगवान को डाल देता हूं। एक गलत। फिर मुझे वो सिर फिर लेके आना पड़ेगा। जो अपने हाथ में नहीं दिया है वो मेरा हो ही नहीं सकता। किसी ने मुझे $100 दिया है तभी ले सकता, या 100 रुपए दे दिया ले सकता हूं। मतलब अदिन्न दान, दान मतलब देना, अदिन्न देना नहीं, पकड़ना। ठीक है, तो जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं हो सकता। चाहे वो रोड में गिरे या कहीं पर भी गिरे, या किसी के बटुए से गिरे, या बटुआ ही गिर गए, तो उसमें करीबन $2,000 था। रुपीस नहीं था, डॉलर्स था। किसी की कोई आया था, बोध गया फॉरेनर, उसका गिर गया। तो मैंने देखा भगवान बुद्ध तो प्रसन्न हो गए मुझसे। करीबन $8,000 है उसमें। $8,000 इंटू 80 रुपीस, 6,40,000 हो गया। अरे भाई, इसको कैसे छोड़ें? ये आ जाएगा। तो ये लालच आ गया। तो फिर रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा कि नरक या प्राणी या प्रेत,
अगर मैं लेता हूं, समझो मनुष्य बन के पैदा हुआ, तो मेरा प्रॉपर्टी निकल जाएगा, मैं कहीं का कहीं ना रहूंगा, कोई मुझे फ्रॉड करके वो लेके जाएगा। वो बेटा लेके जा सकता है, बेटी लेके जा सकती है, दामाद लेके जा सकता है, या जो उसकी बीवी है, मतलब मेरे जो बेटे का जो पत्नी है, वो लेके जा सकती है। कोई ना कोई तो मेरा जो बनाया है वो लेके तो जाएगा। तो मुझे क्या करना है? नहीं ले, उधर भी गिरने दो, मुझे क्या है, सीधा जाऊंगा। तो एक बनता है कि लेके पुलिस को दे दो, कर सकता हूं, पर छुआ तो है, लालच तो आ गया, क्योंकि मैंने खोल के देखा क्या है। वैसे ही बटवा जो गिरा है बिना देखे मैंने दे दिया, सही बात है, खोला तो है, देखा, फिर लालच आ गया। इससे अच्छा है अब वहां गिरा है ऐसे जाओ। जैसे हम विपश्यना में जो करते हैं कि सर को नीचे करके वॉकिंग करते हैं, वैसे ही ये प्रैक्टिस है। ये दूसरा हो गया, ठीक है। और तीसरे पे आएंगे, चुंड सुत्त है अंगुत्तर निकाय में। वहां पे बुद्ध भगवान कहते हैं कि सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट क्या होता है। जिसका बेटी है, या मतलब किसी का पराया है, उसका मर्द या उसका पति या उसका पिताजी, उसका भाई, वो कोई तो, या उसकी माँ, या उसकी समझिए कि बड़ी माँ, छोटी माँ, या कोई भी है, या वो किसी का रखवाली है, कोई भी तो है, तो उसको छूना मना है। मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बलात्कार नहीं किया है, पर मैंने छुआ है, मिसकॉन्डक्ट हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी? अगर मनुष्य जन्म लेता हूं तो मेरे शत्रु लोग बहुत होंगे, मित्र लोग कम पड़ेंगे। अगर इस जन्म में मेरा शत्रु लोग बहुत है, इसका मतलब यह है कि लास्ट जन्म में मैंने ये किया है, अभी इस जन्म में भुगतने का टाइम आ गया। समझिए कि मुझे बहुत मित्र है, शत्रु नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैंने किसी का कुछ भी नहीं किया है। ये मैं आज देख सकता हूं, अपने आप में मैं देख सकता हूं कि मेरा शत्रु लोग नहीं है, मित्र लोग ही बहुत है। जो बुद्ध धम्म से जुड़े हैं वही है, और कोई भी नहीं है। इसके अच्छा कोई मित्र लोग हो ही नहीं सकता, कल्याण मित्र हो गए। अच्छी बात है ना? तो मैं देख सकता हूं, हाँ, ये वरदान है बुद्ध भगवान का। तो मैं ऐसा एक रिफ्लेक्शन या स्मरण या याद मैं करता रहूंगा। ये हो गया तीसरा। फिर आते हैं मूसावाद। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है, कोई मुझे फंसा देगा, कोई प्रॉब्लम, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं मनुष्य जन्म में पैदा हुआ, कोई झूठे इल्जाम में मुझे फंसा देगा, तो मुझे वो याद करना है कि झूठे इल्जाम लेना नहीं है। तो मैं झूठ बोलना बंद करूं, दो ही चीज है। या झूठे इल्जाम लेने के लिए तैयार हो जाओ, झूठे इल्जाम तो आ जाएंगे, कोई ना कोई मुझे फिक्स कर देगा कि इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ऐसा कहा था, इन्होंने ये किया था, वो किया था, कोर्ट केस हो जाएगा, वगैरह वगैरह तो हो जाएगा। तो उतना टेंशन मुझे लेने के लिए तैयार पड़ना पड़ेगा। हाँ, मैंने कई झूठ कहा है तो क्या करें, उसको कुछ नहीं कर सकते। अभी से, इसी वक्त से मैं कुछ कर सकता हूं।
वो पीछे जाके वो रोने से कोई फायदा नहीं है। वो होता है कि मिध, सॉरी मिध नहीं, कुछ मतलब दिल में ऐसा आ जाएगा मैंने गलत कर दिया तो क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, वैसा एक आ जाएगा। वैसा नहीं करना है। हमें ये स्मरण करना है कि अंगुलीमाल ने इतने सारे लोगों को मारते हुए भी अरहत बने, तो हम आज ही अपना मन साफ करेंगे तो वो जो है वैसे ही रहेगा, वो उगेगा नहीं। बस जो बीज मैंने डाला है, झूठ कहने से जो बीज डाला है वो मिट्टी में वैसे ही रहेगा, क्योंकि पानी नहीं डाल रहा हूं उसके ऊपर, मतलब उसको कंडीशन सप्लाई नहीं कर रहा हूं। तो कॉज एंड इफेक्ट, पटित समुत्पाद, वो नहीं दे रहा हूं, हेतु वो नहीं है। ठीक है, तो पठन धम्म वो नहीं दे रहा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए है, क्योंकि अक्सर मैं कभी कभी झूठ बोल सकता, ऐसा मुझे दिखना पड़ेगा। फिर अगला आएंगे, दो लोगों को बिछड़ने का काम करना, दो लोगों को बिछड़ना, ये काम। तो दोस्त नहीं होंगे मेरे पास, दोस्त हो जाएगा वो किसी ने आके उठा के लेके जाएगा और मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो वो कहेगा। मैंने किया है नहीं किया है पता नहीं है, वो एक स्टोरी बना के तो मुझे फंसा देगा। तो मुझे ये स्मरण करना है कि मैं, दो लोग हैं, बहुत दोस्ती है उनमें, मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि वो मेरा दोस्त जो है इसके साथ बहुत जुड़ रहा है। तो एक प्रश्न आता है कि मेरा दोस्त जो है वो लौकिक की बात करता है और दूसरा आदमी जो है वो धर्म की बात करता है, तो ये दोस्त को मैं चेंज क्यों ना करूं? डिवाइड नहीं करना है, अगर कहना है तो दोनों को मिला के ही करना पड़ेगा। मतलब ये व्यवहारिक बात करता है और ये आध्यात्मिक बात करता है, दोनों को बिठाओ और जो अध्यात्म का जो बात कर रहा है उसको कहो, देखो भाई मेरा दोस्त जो है वो तो लौकिक आदमी है, लौकिक सेवन करता है, आप अध्यात्म की बात करते हैं, मुझे भी अध्यात्म से बहुत लगाव है, पर मेरा दोस्त तो सुनता नहीं है, तो हम दोनों इनको सिखाएंगे। वो ठीक है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इनके पास गया, ये दोस्त के पास गया, उसके बारे में कुछ कहा और उसने उसको कहा फिर मेरे को कहा, ऐसा घूम घूम के नहीं आना। फिर ऐसा करता हूं तो क्या होगा, मेरे पास दोस्त नहीं रहेंगे। मतलब इस जन्म में बहुत सारे दोस्त है का मतलब ये है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ये मुझे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना है, मन में पॉजिटिव भी डालना है, नहीं तो वो मन भटक जाएगा। मुझे पॉजिटिव भी डालना है, इस जन्म में क्या हो रहा है, इस क्षण में क्या हो रहा है, इस क्षण में मैं खुशी से झूम रहा हूँ, इस क्षण में मुझे दोस्त मिले हैं, इस जन्म में कोई मुझे फंसा नहीं रहा है, इस जन्म में कोई ऐसा कोई क्या कहते हैं कि जो मेरे शत्रु लोग वो नहीं है, वैसा पूरा देखना पड़ेगा। कि मेरा अभी देखिए 52 साल हो गया, ठीक है, अभी तक मरा नहीं हूं, मतलब 50 साल तो मैंने पार कर ली, ठीक है, और समझिए 20-30 साल रहता हूं, लंबी आयु हो, मतलब मैंने किसी का प्राण हत्या नहीं किया है, इसीलिए मुझे कोई रोग नहीं है, कोई वियोग नहीं है, बीवी नहीं मरी है या बेटे को कुछ नहीं हुआ है वगैरह वगैरह, देख सकता हूँ।
ठीक है ना। तो अगर मैं ये देखता हूं तो गुस्सा बंदी हो जाएगा, पर मुझे देखना पड़ेगा। ये पॉजिटिव है और इसका कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव होता है। पर हम लोग अगर नेगेटिव करते हैं कि बुरा करते हैं तो उसका नतीजा आज बुरा हो सकता है या बाद में बुरा हो जाएगा। ऐसा मुझे देखना है। ये डिविजिव स्पीच मतलब दोनों लोगों को आपस में बैर किया। फिर आता है कि हार्श स्पीच, जो भीम जी आपने अभी कहा। डोंट वरी, आपका क्या होगा मालूम है, आपको कानों में इतना सुनना पड़ेगा कि आपको ना चाहे भी आपको कोई आपको सुना के जाएगा। तो आज ही आप उसको स्टॉप कर देंगे तो सुनाने का वो नहीं आएगा। मतलब मैं आपको बताता हूं सुनाने का मतलब क्या होता है। जैसे समझिए आप ध्यान में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, कोई लाउड स्पीकर से इतना तकलीफ देगा आपको, इतना तकलीफ देगा, आप समझेंगे अरे यार ये क्या ऐसा आदमी, यार ये मुझे इतना सता रहा है। वो सुनाएगा आपको, क्योंकि आपने किसी का सुना दिया तो आपको भी सुनना पड़ेगा। तो इसके ऊपर रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। जैसे मेरा घर है, ये यहीं पे एक टेम्पल है, एक वहां पे एक फेस्टिवल करते हैं। जब भी करते हैं कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ये मंदिर से इतनी जोर से आवाज़ें डालते हैं गाने का, आप चाहे डोर विंडो या जितना भी कुछ भी है आप डालो, आपको कानों में तो मस्त गाने का बौछारे हो जाएंगे। तो मैं जब ये मेडिटेशन करता हूं तो मुझे लगता है मैंने बहुत सुनाया है लोगों को, इसीलिए अभी कान खोल के सुन लो प्यारे, तेरा वक्त आ गया, सुनो सुनो साले, तुमने इतना सुनाया था, अभी सुनो। मैं ऐसा अपना दिल को बहला लेता हूं कि मैंने सुनाया है, इसलिए वापस मुझे सुनना पड़ रहा है। एंड हकीकत है, हो रहा है। हर किसी को नहीं होता है, वो भी है। जैसे मेरी बीवी है, वो गाना डालते हैं, इनको कुछ नहीं होता है, सिर्फ मुझे होता है। वही गाना आराम से वो बैठी है, उसको कुछ नहीं लगता है, मुझे तो बहुत लगता है। जैसे मैं विपश्यना करने के बैठता हूँ, आनापानसति करने के लिए बैठता हूँ, तकलीफ झेलना पड़ेगा। ऐसा लगता है मार दूं साले को। अभी मार देंगे तो पहला प्रॉब्लम हो जाएगा, पानाति पाता। गुस्सा आ गया ना, आपका अंदर जो है आ गया ना, वो देखना पड़ेगा। अभी मुझे वो देखना पड़ेगा। वो जो गुस्सा जो था उसके लिए तो सुना रहा है, वो सुना रहा है इसी के लिए। अभी सुधरने का टाइम आ गया मुझे, तो बैठे रहो, उसी को विपश्यना ले लो सब्जेक्ट, कि मन में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है। गुस्सा आ रहा है, और आ रहा है, और आ रहा है, और आ रहा है, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, जितना आएगा आने दो। कान फट रहा है, फटने दो, तो मेरा विपश्यना अच्छा चलेगा। तभी उसको मुझे नमस्ते कहना पड़ेगा। आपने अच्छा किया कि आपने इतनी अच्छी तरह से गाना डाल दी कि मेरा विपश्यना भंग नहीं हुआ, आपने मेरा आंखें खोल दी। तो मैं ऐसा करता हूं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने भी किसी का सुनाया है, अच्छी तरह से सुनाया है, इसीलिए वो भी मुझे अच्छी तरह से सुना रहा है, ठीक है। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है भीम जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको भी सुनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल कोई ना कोई आपको सुनाएगा, ठीक है। उतना ही होगा और कुछ नहीं होगा, तो सुन लो।
जब भी सुनते हो ना तभी विपश्यना कर लो, उसी को ऑब्जेक्ट ले लो, भूल ना जाना। जैसे पुराने ज़माने में वो ये आता था ना, एक एडवर्टाइजमेंट, भूल ना जाना इसी बल्ब लगाना, वो वैसा ही आप ये रख लो। जब भी कोई सुनाए आ रहा है भाई अभी विपश्यना चालू करो, वही उसी को ले लेंगे विपश्यना के लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। सच्ची आपका इतना एंड्योरेंस बन जाएगा, इतना ताकत हो जाएगा कि आप कुछ भी सह सकते हो, कुछ भी सहन शक्ति आ जाएगी। तो मैं आपके साथ हूं, डोंट वरी। ठीक है, फिर ये नॉनसेंस जो बात करते हैं, गॉसिप, आज कंट्री में क्या हुआ, ये टीवी में क्या आया, ये सीरियल का क्या हुआ, वगैरह 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 वगैरह। अगर मैं वो इसके बारे में करता हूं तो कोई मेरा बात मानेगा नहीं, मैं धमका ही बात करूं मानेगा नहीं। वो कहेगा विलास जी आपका धमका पता नहीं है, लगता तो आप जेन्यून लगते हो पर पता नहीं आप, मैं मानता नहीं हूं आपका बात। तो जब भी ये होता है फिर विपश्यना करना पड़ेगा मुझे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत गॉसिप किया है, इसी जन्म में बहुत किए होंगे या पिछले जन्म में तो किए ही होंगे, तो दोनों का मुझे उसका मिल रहा है। तो दो चीज हम विपश्यना से देख सकते हैं, एक कोई हमें सुना रहा है और मेरी बात कोई मान नहीं रहा। मैं कहता हूं कि मैं सोतापन हूं, आप हंसेंगे। मैं कहता हूं मैं सकदागामी हूं और भी हंसेंगे। फिर मैं कहता हूं कि मैं अनागामी हो गया और भी हंसेंगे। तो क्या करें, कहां से बताऊं, क्योंकि मानने वाला नहीं है। तो जब भी ये होता है, चाहे व्यावहारिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में होता है, तो मुझे तुरंत इसके ऊपर सती लेके आना है, जागृति लेके आना है कि मुझे विपश्यना इसके बारे में करना है। ठीक है, और लास्ट ये है मज्जपमद्दट्टाना, सुरा मेरे मज्जपमद्दट्टा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका दिमाग की हालत, मतलब वो अच्छे तो हैं पर वो डिसीजन ऐसा पागल की तरह क्यों लेते हैं मेरे समझ में नहीं आता था। तो मैंने देखा कि जब भी हम पी के आते हैं हमारा डिसीजन वैसा ही होता है। अगर देखा जाए, कोई पिया है, ज़्यादा शराब पी के आया है, उनका डिसीजन ऐसा ही होता है। वो हालत में नहीं रहते कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं या कैसा सोच है, वो सब निकल जाएगा। मतलब जो प्रज्ञा होना चाहिए वो चला गया। तो अगले जन्म में जब भी इनका जन्म होगा, या मैं अगर पी रहा हूँ रोज एक लार्ज, ज़्यादा नहीं पीता हूँ, एक ही लार्ज पीता हूँ, वो भी अच्छा वाला इम्पोर्टेड विस्की पीता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही शराब खाने से कुछ लेके आ गया, वो भी इम्पोर्टेड है। वो कोई दोस्त आया था एयरपोर्ट से, मैंने उसको मांगा था कि मुंबई एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जब भी वो एयरपोर्ट से आ रहा था, मैंने कहा भैया तुम तो अमेरिका से आ रहे हो, 1 लीटर का लेके आ जाओ प्यारे। उसने कहा दोस्त तेरे लिए कि मेरी जान प्यारी है, लेके में क्या है, मैं लेके आ 2 लीटर लेके आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, दान में दे रहा है, ले लेता हूँ। रोज 1 पैक पीता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली मेडिकली ऑल्सो इट इज सेड ड्रिंकिंग लिटिल बिट ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर हार्ट। थोड़ा थोड़ा पी लेता हूँ, उसमें क्या है।
पर ये चक्कर ये है कि मेरा मन जो है मंद बुद्धि होता जाएगा। फिर एक डेमेंशिया आ गया तो पूरा चला गया, या अगले जन्म में जब भी पैदा होता हूं तो मंद बुद्धि का ही एक जन्म आ जाएगा। मतलब बुद्धि तो नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ भी समझ नहीं है। मेरे तभी जो माँ बाप होंगे उनको तो मैं क्या कहते हैं बोझ बन जाऊंगा, क्यों मेरा देखभाल करना ही उनका काम हो गया। अगर वो जल्दी मर गए तो समझो मेरा डूब गया। तो ये अगर मैं मन में डालता हूं तो दारू वगैरह ड्रग्स सारा निकल जाए, एक ही झटके में निकल जाएगा। तो अभी मेरा मन प्रशांत हो गया। ये कितने घंटे कर सकता हूं अगर हम पूछेंगे, ये करीबन करते करते 4 घंटे लग जाएगा। ऐसा रिफ्लेक्शन करेंगे तो 4-5 घंटे लग जाएगा। मतलब मैं काम कर रहा हूं, जो काम कर रहा हूं उसी में देख रहा हूं कि मैं चोरी कर रहा हूं या ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं ये कर रहा हूं ये कर रहा हूं, तो जो उसी के साथ जुड़ा हुआ हूं, अलग सा नहीं कर रहा हूं, उसी के साथ। कोई मुझे सुना रहा है, मेरा बॉस है सुना रहा है, हाँ क्यों सुना रहा है? क्योंकि गलत किया है इसलिए सुना रहा है, और सुना भी जोर से रहा है। वो जैसे सुना रहा है, वो प्यार से सुना रहा है वो अलग है, गुस्सा होके सुना रहा है। ऐसा मुझे देखने को मिल जाएगा। ये पूरा दिन का हो गया, तो अभी सील भंग नहीं होगा। 7 दिन में अगर मैं ऐसा प्रैक्टिस करूंगा तो सील भंग ही नहीं होगा। सील भंग होने का गुंजाइश ही नहीं है। 14 दिन में मतलब 2 हफ्ते में ऑटोमेटिक हो जाएगा, सील टूटेगा ही नहीं। क्योंकि ये इसके ऊपर रिफ्लेक्शन करते करते या इसके ऊपर स्मरण करते करते मन जो मैल को ले रहा था वो छोड़ दिया। सबसे आसान तरीका है ये दुच्चरित विपाक सूत्र। पूरी दिन कर सकते हैं, रात तक। जैसे हम विपश्यना क्लास में करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं 10 दिन का या 20 दिन का, जितना दिन करते हैं। यहाँ पे तो चुप रहने की बात ही नहीं आती है। इसीलिए ये दुच्चरित देख के मैं हर दम कर सकता हूँ। तो ये 2 हफ्ते का मेरा काम है। तो रोज सवेरे देखना है कि मैंने सील का प्रारंभ किया है। रात में बैठ के देखना है कितना सील टूट गया। लिखना पड़ेगा एक नोटपैड लेके या बुक लेके, हाँ अभी मैंने एक झूठ कहा, अभी मैंने ऐसा किया, अभी मैंने ऐसा किया, अभी मैंने ऐसा किया। अगर नहीं किया तो कुछ भी लिखना जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खाली है का मतलब मेरा मन शांत है। ठीक है, किसी का पिटाई की, लिखना पड़ेगा मैंने किसी का पिटाई की। वो वापस मुझे ये नहीं करना है कि मैंने क्यों किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था वगैरह वगैरह। वो करेंगे तो एक वो निवारण हो गया, उसको हटाने का बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है, साक्षी भाव से देखना है, जो हुआ है उसको देखना है। उसके ऊपर टिप्पणी लिखना नहीं है कि मैंने क्यों किया, इसलिए किया, उसलिए किया, वो नहीं करना है। वो गलत है, मैं ठीक हूँ या मैं ठीक नहीं था, वो सही था वगैरह वगैरह, वो करना नहीं है। हमें पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है कि मैंने ऐसा किया है। पहचान आती
जैसे सरागम वा चित्तम सरागम चित्तम पजानाति, पजानना जान लिया, जाना है कि मैंने ऐसा किया या मेरे मन में ऐसा आया। ये चित्त के बारे में करना है, चित्तानुपස්සना है ये एक्चुअली देखा जाए तो। चित्त में क्या आ रहा है, झूठ कहने के आ रहा है तो मैं झूठ कह दिया ना, ठीक है, हाँ अभी मैंने झूठ कहा, बड़ा झूठ कहा, छोटा झूठ कहा, ऐसा झूठ कहा, वो जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो ऐसा कर रहा था, कह रहा था, वो ऑटो वाला ऐसा कर रहा था, वो ऐसा हो रहा था, वैसा वो नहीं करना है, सिर्फ आके लिखना है। अगर किसी दिन मैंने पूरा खाली है, अच्छी बात है, ऐसे पूरा 14 दिन खाली रहेगा, उस दिन देख लो क्या होगा आपका, मस्त मजा आएगा। आपका सील जब भी पूरी तरह से फिट हो गया तो आपको बुद्ध धम्म संघ का एक्सपीरियंस हो जाएगा टोटल, और उसका नतीजा ये होगा आप रोज पूरा दिन आप रोएंगे, इतना ही होगा, आंसू आता रहेगा, क्योंकि आपको जो दिशा मिलनी थी मिल गई और सख्खाए दिट्टी निकल जाएगा। उसी दिन आप सोतापन्न बन गए। आप अपने आप को देख सकते हो कि अब सोतापन्न हो या नहीं हो। आपको इतनी आराम से हो जाएगा कि लगेगा बोझ उतर गया आपसे। ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे क्या हुआ है। तो हमें पहले 14 दिन सील का देखना पड़ेगा, खाली पेज होना चाहिए, बुक लेना है, आज का डेट डालना है, खाली होना चाहिए, कल का डेट डालना है, खाली होना चाहिए। जैसे हम दुनियादारी कर रहे हैं वैसे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पे बैठ लिया, डोर लगा दिया और आराम से मैंने, वो नहीं करना है। दुनियादारी करना है, जो कर रहे थे दुनियादारी, बच्चे हैं, बेबी है, ये है, वो है, या कुछ भी करेंगे, सब्जी लेना है वहां से चालू होता है, या वॉकिंग गए, या कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो जो हम जो कर रहे हैं वही करना है, तभी हमारे समझ में आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है, मतलब शक्ति क्या है। गोयंका जी का जो टेक्निक है वही शक्ति है, क्योंकि हमने सीख के आए हैं कि कैसे हम सेंसेशन को समझ सकते हैं। तो हमने आंख बंद करके जो सेंसेशन देख रहे हैं, अभी आंख खोल के वही सेंसेशन देखेंगे। जो कुछ भी आएगा वो बदन में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। उसी को देखना है, उसी को परखना है और देखना है। जब भी हम 14 दिन करेंगे उत्तर आ जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको वो बुक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी वो हैबिट हो गया, आदत हो गया। जो ये आदत हो गया था, हम अभी ये आदत बना दिए। अभी पहले बार आपको इति पिसो भगवा का एक्सपीरियंस हो जाएगा। जो हम बुद्ध भगवान का जो पढ़ते हैं, इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो, वो आपको खुद समझ में आ जाए। हमारे पास वो परित है, वो हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, पर वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा। परियत्ति हुआ है, पटिपत्ति थोड़ा हो सकता है, पटिवेदन नहीं हो गया होगा। तो उस दिन हमें पटिवेदन हो जाएगा, पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। हम अभी एक्सपीरियंस कर चुके हैं बुद्ध धम्म संघ का, अभी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये हम जो क्लास में सीख के आए हैं विपश्यना, उसका हम अभी रियल लाइफ में जो हमारा
गृहस्थी का जो वातावरण है उसके ऊपर हम कर रहे हैं। ये ऐसा है। तो अविनाश जी का ये क्वेश्चन था, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो रिट्रीट से या शिविर से हम सीख के आए हैं उसको हम अपने निजी जीवन में इम्प्लीमेंट करें, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो सुत्त में है हम उसको समझें सही तरह से कैसा करना है। ये तो हमारे पास है, ये तो खजाना है, हम सीख के आए हैं, उस खजाना तो है। ये डालेंगे तो मस्त, इतना तंदुरुस्त हो जाएगा, भटकने की कुछ भी शंका ही नहीं है कि हम थोड़ा भटक सकते हैं या कुछ हमने कुछ कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अच्छी तरह से आ जाएगा हमें, ये है। और इनका एक और प्रश्न था कि जो मैंने लिखा था, तो मैंने अनंत लक्षण से क्यों चालू किया? तो हमें तो अनित्य बोध का करना है, अनंत से क्यों चालू किया? तो मैंने इनको कहा कि हम 3 तरह से कर सकते हैं। हमें तो लक्षण देखना है, अनित्य या अनिच्य, पाली में अनिच्य, और गोयंका जी कहते हैं अनित्य बोध। समझिए, अनित्य को लेते हैं, दुख तो दुख है और अनंत है, उसमें ट्रांसलेट होके वो अनात्म बन गया है। कुछ भी हो, किसी किसी को अनिश्चित समझ में आ जाता है, बहुत ही अच्छे। क्योंकि अगर मुझे चारों में से पद परम एक है, नैय, फिर विपचितन्यु, उगटितन्यु, ये 4 पुग्गल है। अगर मेरा मन नैय नहीं है, कुछ भी हो जाए, तिलक्कन मेरे समझ में नहीं आएगा, जितना भी पढ़ूं। उसके लिए सुत्त भी है, परखने के लिए मैं कौन हूं, पद परम हूं, नैय हूं, विपचितन्य हूं, उगटितन्य हूं, ये 4 है। तो लक्षण देखने के लिए, तिलक्षण देखने के लिए, इन चारों में से चौथा है तो इस जन्म में नहीं होने वाला, मतलब पद परम है तो नहीं होने वाला है। उसको तो सिर्फ भगवान की तरह उसको देखना पड़ेगा, मतलब बुद्ध भगवान है, रोज पूजा करो वगैरह करो, वो करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकता वो। समझिए, नहीं है, अगर नहीं है तो क्या कर सकता है? नहीं में भी बहुत सारा है। तो अगर नहीं है तो डिटेल में कहना पड़ेगा, और अनिच्च जो है वो गहराई का है, इतनी आसान से समझने वाली चीज नहीं है। जो अनित्य बोध जो है वो उतना आसान से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये हमें अरहत तक लेके जाएगा, अनिच्च या अनित्य। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सोतापन में आ जाएगा, नहीं, वो लास्ट तक वही है। निब्बाण के लिए अनिच्य ही करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है। तो ये होने वाला नहीं है जल्दी से। तो हमारे पास 2 रह गए, एक दुख और एक अनात्म या अनंत। मेरे लिए जो काम किया, मेरे लिए दोनों काम किया। एक दुख का भी मैंने एक दिन समझ में आ गया पूरा, थोड़ी दिन के बाद अनंत एक्सपीरियंस हो गया। इसीलिए मैंने वो अनंत लक्षण सूत्र लिया, क्योंकि धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद बुद्ध भगवान ने सीधा उनको अनंत के बारे में चालू किया था। अनंत लक्षण सूत्र वो संयुक्त निकाय में 22.59 है। और वो अगर देखा जाए, वो पहले अनंत से ही चालू करते हैं, फिर कहते हैं कि जो अनंत है वो दुख है कि सुख है। कहते हैं दुख है भंते। अच्छा, जो अनंत है, जो दुख है, वो अनिच्च है कि नहीं है? वो कहते हैं हाँ जी।
तो पहले इन्होंने जो पेनिट्रेट किया था, वो जो गहराई से जो देखा था, वो अनंत देखा, और मेरे लिए वही वर्क नहीं हुआ था। पहली बार मुझे दुख का समझ में आ गया था, अनंत समझ में नहीं आया था, ऑनेस्टली कहा गया। तो वो उतना मुझे गहराई तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत हुआ था, पर जितना दुख का हुआ था उतना मुझे इसका नहीं हुआ था। फिर मुझे अनंत का एक्सपीरियंस हो गया। जब भी अनंत और दुख का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद मुझे अनित्य जो है वो समझ में आ गया। अभी मैं भूलता नहीं, वो क्योंकि मैंने पटिवेदन हो गया उसका। पहले मेरा परियति था, पढ़ पढ़ के मैंने जितना अनित्य के बारे में है, मैंने इतना सारा सुत्त पढ़ा था। दुख के बारे में तो बहुत सारा पढ़ा था, और अनंत के बारे में भी है, और मुझे अच्छा लगा था ये वाला अनंत लक्कन सुत्त। तो ये मेरा है, ये मेरा निजी है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वैसा करना है। तो मेरा उत्तर ये है कि अगर आपको अनित्य समझ में आ गया है या अनित्य बोध समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप नेय से भी ऊपर हो। मतलब अगर आप विपचितन्यु हो तो तुरंत समझ में आ जाएगा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में आ जाएगा। कौन सा एक ही लाइन? यम किंची समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम इति, बस इतना ही है, और कुछ आगे देने की जरूरत नहीं है। या ये भी हो सकता है, ये धम्म हेतु प्रभाव तेसम हेतुम ततात गतो आह। इतने कहने से साक्षात्कार हो गया, क्योंकि मेरा तो विपचित तन्यु है। अगर उगट तन्यु है तो क्या होगा, मेरा हालत क्या होगा? सिर्फ अनिश्चित दुख का अनंत कह दिया, काफी हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है। जैसे अनिच्चावत संखार उपादय व धम्मिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति ते सन उपसमो सुखो। ये है परिनिब्बाण सूत्र में, दीघ निकाय 16 में आता है, जो सक्का ने कहा। अगर मेरा मन उगटी तन्यु है, बस हो गया, अरहत बन गए, इतने से बन गए। या एक और है, एतन संतन एतन पणीतन यदिदम सब्ब संखार समथो सब्बूपति पटि निस्सग्गो तन्हक्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। बस हो गया, कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है मुझे। बुद्ध धम्म में कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने समझ लिया। पर मैं तो ठहरा नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया, मैं नहीं हूं, इसके ऊपर नहीं हूं, इतना तो गारंटीड है। मतलब मुझे बहुत चीज लेना पड़ेगा, अंगुत्तर निकाय लेना पड़ेगा, संयुक्त निकाय लेना पड़ेगा, खुद्दक निकाय लेना पड़ेगा, दीघ निकाय लेना पड़ेगा, फिर मेरे समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। वो सब लेने के बाद बुद्ध भगवान ने जितना भी उदाहरण दिए हैं वो सब मुझे लेना पड़ेगा, तभी मुझे समझ में आए। जैसे फेन पिंडुपम सूत्र है, वो है उदाहरण वाला, तभी मुझे 5 एग्रीगेट्स जो खंड है वो मुझे समझ में आ गया, तुरंत समझ में आ गया। तभी मुझे पता चला, हाँ मैं नहीं हूं। मतलब उदाहरण के साथ ही मुझे समझ में आता है, बिना उदाहरण के मेरे समझ में नहीं आए। इतना मुझे गारंटी हो गया। ठीक है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अपने आप में देखना पड़ेगा कि सुत्त को मैं कैसे पढ़ सकता हूं। कि अविनाश जी का अच्छा क्वेश्चन था कि मैं सुत्त को कैसे पढ़ सकता हूं। सुत्त को मैं ऐसा पढ़ सकता हूं कि ये पदपर्म हूं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा सुत्त का, चाहे वो कोई भी सिखाए, कुछ भी नहीं आएगा। मतलब ऐसे ही समझ में तो आ जाएगा, पर वो रहेगा नहीं।
और याद भी नहीं रहेगा कि ये सुत्त कौन सा है, कहाँ से है, ये कहाँ मैंने पढ़ा था, वो भी नहीं होगा, मेमोरी पावर भी नहीं होगा इसको, पद परम को। अगर वो उगट तन्यु विपचित तन्यु नहीं है, मेमोरी पावर बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। मतलब एक बार पढ़ लिया, अगर नहीं भी है पढ़ लिया, उसको समझ में आ जाएगा, पर उसको उदाहरण चाहिए, बस उतना ही है। डिफरेंस ये है कि उसको उदाहरण चाहिए, उदाहरण मिल गया, उसको समझ में आ गया, बस हो गया, तो मुझे डेफिनेट हो गया मैं नहीं हूं। मतलब बुद्ध धम्म का ही मैं फॉलोअर हूं, पर नहीं हूं। मतलब वो लंबा टाइम लगेगा मुझे, ऐसा नहीं कि मुझे तुरंत अरहत बन जाऊंगा, वो नहीं है, टाइम लगेगा। मतलब मैंने पिछले जन्म में भी करके आया हूं, तो यहां तक आ गया, अभी यहां से कहां जाऊंगा वो देखना पड़ेगा, पर वो रास्ते में तो हूं, इतना तो गारंटी हो गया। तो हमें खुद गारंटी हो जाएगा हम नहीं है, विपचित अन्यु है, उगटित अन्यु है, या पद परम है। अच्छा, एक और चीज है, जिस दिन मुझे सुत्ता का एक सुत्ता पूरा अपने आप समझ में आ जाएगा, तो सारा बाल आपका ऐसा उठ जाएंगे, जैसे जो गूस बम्प्स जो कहते हैं ना, वो आपको आ जाएगा। और कई कई सुत्त में मैंने इतना रोया है, इतना रोया है, बहुत रोया है, मतलब इतना आंसू आ गया कि भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी। ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सुत्ता में हुआ है, ठीक है, वो अपने आप आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना है, या हिंदी ट्रांसलेशन देखना है, या मराठी का देखना है, या कन्नड़ा का देखना है, वैसा नहीं है। वो कौन सा भी लैंग्वेज हो, वो कुछ लेना देना नहीं है, पर समझ में आ गया। अगर वो पाली में भी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, समझ में आ गया। चाहे वो मराठी ट्रांसलेटेड है, कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है, आपको आ जाएगा। ये आपको नहीं है कि नहीं है समझ में आ जाएगा। हम ज्यादा पढ़े होंगे पर आंसू नहीं आया, या बाल उठे नहीं, या ऐसा नहीं लगा कि कुछ हो रहा है बदन में, ऐसे कुछ सेंसेशन, मतलब वेदना जो जाग रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरा जन्म सफल हो गया, ऐसा आपको एहसास हो जाएगा। अगर विपच तन्यु है तो एक ही लाइन, यम किंची समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम इति, बस हो गया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो उससे भी सोतापन हो सकता है, नेय बन के भी सोतापन हो सकता है। अगर पद्म परम है, सोतापन होने की चांस ही नहीं है। ये हमें खुद समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी से भी पूछने की जरूरत भी नहीं है, किसी बनते के साथ या थेरो के साथ या किसी के साथ जाके भैया बताओ मेरा क्या हाल है, वो पूछने की जरूरत नहीं है। बुद्ध भगवान ही है, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो पहला ये है कि हमें सील का 2 हफ्ते तक, जैसे एक पौधे को देखते हैं, एक पूरा उसके ऊपर एक बिछा देते हैं कि भेड़ बकरी ना आए, वैसा हमें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा अपनी निजी काम में। जैसे हम रिट्रीट में जो करते हैं या शिविर में जैसे करते हैं, वैसा ही यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। फिर वो 14 दिन में आपको उसका नतीजा समझ में आ जाए। 2 हफ्ते। तो एक प्रश्न आता है कि मैंने 8 दिन किया, 9वां दिन झूठ कह दिया। जैसे सांप सीढ़ी होता है वैसा हो गया, फिर से चालू करो, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, फिर वहां से 14 दिन।
अरे मैं 11वां दिन किसी के ऊपर गुस्सा हो गया, उसको सुना दिया, अच्छा सुना दिया, फिर से चालू करो, और 14 दिन ऐसे। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसे 14 होके 6 महीने निकल जाए, पर अधिष्ठान लेना है, कर्मस्थान वो करना है। मेरा कर्मस्थान है 14 दिन करूंगा। एक और है दुतंग, मतलब मन को इतना स्ट्रांग कर दिया, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा, कुछ भी। तो वैसा मन बनाना पड़ेगा, वो क्या कहते हैं, संकल्प लेना पड़ेगा। तो 14 दिन में डेफिनेट आप अपने आप को देख सकते हो, और वातावरण भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा, घर का माहौल चेंज हो जाएगा। आप जब भी समझिए आपको हासिल हो गया, घर का माहौल चेंज हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरे घर में मैंने देखा है कैसे चेंजेस हो गए, मैंने देखा है। वो बुद्ध भगवान का मैं उसी दिन श्रद्धा आ गई, सच्ची श्रद्धा, ऐसा नहीं कि बुद्ध भगवान है, वो सच्ची श्रद्धा। तो जब भी श्रद्धा आती है समझो हो गया, अभी हम सोतापन बन गए, क्योंकि वही तो श्रद्धा है। क्योंकि हमें कोई कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसा करो वैसा करो, टूटेगा ही नहीं, अटूट है। तो 14 दिन मुझे करना पड़ेगा, बुक लेके खाली होना चाहिए। पहला दिन हो गया खाली है, दूसरा दिन हो गया खाली है, तीसरा दिन हो गया खाली है, वैसा 14 दिन। ये प्रैक्टिस है। आप विपश्यना करते हो या कुछ भी करते हो, करो इसको, दुच्चरित विपाक सूत्र ले लो, बस उतना ही करना है और कुछ नहीं करना। गुरुजी ने जो सिखाया वही करो, आप कुछ चेंजेस मत करो, इसको थोड़ा इनकॉर्पोरेट कर दो। क्योंकि हम यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, मतलब भेड़ बकरी तो आ जाएगी, क्योंकि वो शिविर में तो पूरा बंद है, यहाँ कोई शिविर नहीं है, यहाँ पे भेड़ बकरी आते रहेंगे और खाते रहेंगे। देखभाल तो करना पड़ेगा। गुस्सा आएगा, फिर ईर्ष्या आएगा, फिर लालच आ जाएगा, ये आएगा वो आएगा, कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। जितना हम समझाने की कोशिश करें मन को, भैया ऐसा मत करो, वो करेगा, क्योंकि उसका आदत है करना, वो करेगा। तो ये करना पड़ेगा। कोई प्रश्न है अविनाश जी? शायद मैंने आपका आंसर दे दिया। मैंने यस सर, यस सर। हाँ, तो ये है। जी। तो हम 14 दिन में क्या हासिल करने जा रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम विपश्यना जो में सीखे हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, वो नहीं। गुरुजी ने जो सिखाया है वो अच्छा सिखाया है, उसके ऊपर हम अभी पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन हमारे पास है। हम शिविर इसलिए गए हैं कि फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग हो, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग करके आए हैं। अभी उसके ऊपर मकान बनाओ, जितना बड़ा मकान या जितना माले का बनाना है करो। 10 माले का करना है 10 माले का करो, 20 माले का करना है 20 माले का करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो अटूट है। गुरु जी का जो है वो अटूट है, वो गिरने वाला नहीं है। उबाखिन ने जो सिखाया वो अटूट है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रख के उसके ऊपर ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अभी। तो फाउंडेशन तो स्ट्रांग है, मजबूत है। ये 14 दिन का हो गया। फिर क्या होगा? ये मन में रहेगा। फिर क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? तो मेरा ये होगा कि फिर बुद्ध का स्टार्ट करना है।
बुद्ध क्या होता है, एक्सपीरियंस हो जाएगा। धम्म क्या है, एक्सपीरियंस। उसमें एक पहला वाला एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो है स्वाख्यातो भगवता धम्म। स्व मतलब अपने, स्वाख्यात अपने एक्सपीरियंस, धम्म अपने आप आपको प्रकट हो जाएगा, आपके सामने प्रकट हो जाएगा। कैसे? यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति। सही है। अभी बुद्ध भगवान कहां पे प्रकट होंगे? धम्म में। आपका सील अच्छा होने से आप देख पा रहे हैं कि क्या है। तो क्या है? रूप को समझ लिया, वेदना को समझ लिया, संज्ञा समझ लिया, संखार समझ लिया, विज्ञान समझ लिया, और समझने की कोई और है ही नहीं है। यही तो समझना है पंचखंड को। इसको पकड़ के रखना ही दुख है ना, और क्या है? देख लिए, अनंत देख लिए, दुख देख लिए, अभी अनिश्चित ही देखना है। अनित्य बोध चालू हो जाएगा तब से, अरहत बनने तक वो अनित्य बोध चलता रहे। तो मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो पौधा जो था वो अभी थोड़ी अच्छा बन के पेड़ बन रहा है, अभी फल देगा बाद। वो पहला फल देगा सोतापन्न का, तो दे दिया उसने छोटा वाला, फिर सकदागामी, अनागामी, अरहत, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। तो हम एक एक करके सुत को लेके उसको ऐड करते जाएंगे, तो बड़ा वाला पेड़ हो जाएगा। हम उसको दान दे सकते हैं। अभी इतना फल आ गया, देखो आप भी लेके जाओ, ऐसा है। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो आप पूछ रहे थे कि स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं। तो पहला 14 दिन करेंगे, फिर हम 3 हफ्ता कुछ और करेंगे, फिर 3 हफ्ता कुछ और करेंगे। सो 3 3 6 और 2 8। उसका रिजल्ट है 1, या हमने 1 का 2 किया तो 3 हो गया। समझिए कि 2 में नहीं हो रहा है तो 3 कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 9, 9 हफ्ते में एक पार तो कर दिए। सोतापन्न हो सकते हैं, या सकदागामी हो सकते हैं, या अनागामी हो सकते हैं, या शायद अरहत भी बन जाए, और हमें समझ में आए कि हमने वहां पे आए हैं। जैसे मुंबई पहुंच गए, पता है कि मुंबई पहुंच गए। हम अभी तक सोच रहे थे कि हम लातूर में ही हैं, या हम नांदेड़ में ही हैं। ऐसा नहीं, आपको लोकल देखने के बाद समझ में आ जाएगा ये तो मुंबई है, और थी मुंबई लिखा है तो समझ में आ जाएगा हाँ यही है, और क्या है। और अपुन गिपुन वो जो बात मुंबई वाले जो बात करते हैं वही लैंग्वेज आ गया। और वो मराठी भी ऐसे ही बात करते हैं जैसे उतना शुद्ध नहीं है मराठी, तो समझ में आ गया हाँ यही है। तो ऐसा हमें एहसास हो जाएगा। तो यही है, यही करना है। हमारा आज 1 घंटे के ऊपर चला गया, तो कल से 1 ही घंटे करेंगे, क्योंकि आप भी बोर ना हो जाओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी आपने बताया है, क्या क्या कैन आई टॉक? या प्लीज टॉक आराम से बात कीजिए, इसमें क्या है। तो वो इतना तो कनेक्ट हो रहा है कि फाउंडेशन से शुरुआत हुई है, हो रही है हमारी, और ये सभी मुद्दों का ऐसे ही शुरुआत है। इतना तो कनेक्ट हो पा रहा है। और मुझे लगता है कि अपना जो भी वर्कआउट अभी आपने किया है 14 दिन का हो या और के वीक्स का हो, तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इससे मेरा तो बेनिफिट होगा ही, ऐसा मुझे दिल से लग रहा है। तो व्हाई नॉट टू गेट वन फेयर ट्रायल फॉर योर होल वर्कशॉप, ऐसा। हाँ यही करेंगे जी। तो रोज तो मैं तो पर्सनली अटेंड करने ही वाला हूँ, उसमें कोई मतलब दो राय है ही नहीं। तो दिन भर क्या करना है, एक बुक लेके
ऐसा नहीं जी करना है कि उसी के ऊपर जुड़ गए और दिमाग पागल हो गया। जी जी, ऐसा नहीं, नहीं आई करना। गॉट इट, यस यस। ऐसे ही बुक लेना है, बुक जी पेन, छोटा वाला बुक है। जी कोई जी सब्जी वाला आया, कितने पे दे गए? सर जी ये 40 रुपए का किलो है। हाँ, मैंने वहां पूछा था, वो 50, वो तो 20 रुपए में दे रहा है। लिख लो, झूठ यस मैंने यस। कहा है, मैंने किसी से नहीं पूछा है, 20 रुपए में कह दिया। वेरी ऑनेस्ट जस्टिफिकेशन है। यस, ठीक है, एब्सोल्युटली, यस। लिख लिख लेता हूं कि मैंने जी 20 रुपए, जी 40 रुपए का मैंने, उसने कहा था, मैंने जी 20 रुपए में है करके बताया, जी, झूठ मत बात कर दिया, राइट। झूठ कह दिया। तो वो बुक में आ गया, वो चौपट हो गया उस दिन। हाँ जी, बताइए। अच्छा सर जी, मतलब ये 14 दिन तक हम स्टील का कढ़ाई से पालन करेंगे तो सक्काई दिखती खत्म होगा, ऐसा कहने का मतलब है या मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ। जैसे हम सील को पूरा करेंगे तो सखाए दिट्टी तभी समझ में आ जाएगा। रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान आपको समझ में आ जाएगा। हम एक सुत्ता लेंगे, अनंत लक्षण सुत्ता, उसमें आपको 5 एग्रीगेट्स, जो 5 खंड है ना, वो समझ में आ जाएगा। वो सुत्ता में ही है, पर हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है क्योंकि वो सील भंग होता होता जा रहा है। वो मैंने उदाहरण इसीलिए दिया, हम लोग इतने आदती हो गए हैं कि हम कहेंगे सब्जी वाले को वो दे रहा था, आप क्यों नहीं देंगे? मुझे लगता है हमने गलत नहीं किया है, गलत किया है। क्यों? पहली बात, लालच आ गया। वो 40 में दे रहा है तो लेना है तो ले लो, मत लेना है तो मत लो। वो कंपैरिजन क्यों करना है? वो गलत है। दूसरी बात, वो तो प्रॉफिट तो करेगा, वो 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 उसका कर्म है, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। वो भोगेगा ना, वो झूठ कहेगा तो वो भोगेगा। वो मुझे भी झूठ क्यों नहीं कहे, क्यों कहना उसके साथ? ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है ना? छोटी छोटी चीज है, वो सब्जी का है, और सब्जी से ही हम करते हैं। एक और देखिए, अदिन्न दान, 10 रुपए कह रहा है, 5 रुपए में देना। कशाला तुम्ही, हाँ, ले लिया ना 5 रुपए का, भुगतो अभी। वो अदिन्न दान हो गया ना। ठीक है, फिर ऐसा देखते जाएंगे, रोज कुछ ना कुछ तो तोड़ते रहेंगे। अ, ये तो मतलब ये सटल वे से करना पड़ेगा, ये मोटा मोटा हाँ करके कुछ हाँ ये कोई हमारे ऊपर तो नजर तो नहीं रख रहा है, लेकिन हमें ईमानदारी से 100% ईमानदारी से सब करना पड़ेगा ये सब चीज। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, लिखना पड़ेगा अपने खुद के लिए, किसी के लिए नहीं। चोर को चोर ही चोर को पकड़ लिया, कोतवाल की जरूरत नहीं पड़ी। ये मन जो है ना, वो चोरी कर रहा था, वो मन ही मन को पकड़ लिया। तो शाम को जब भी मैं आनापानसति करता हूं, या मैं सोने से पहले इति पिसो भगवा वगैरह वगैरह करता हूं, तो वो बुक लूंगा तो इतना सारा मैंने तोड़ा है। और जब ये टूटता है तो फाउंडेशन के साथ गिरता है कि नहीं? जब मकान गिरता है, फाउंडेशन भी गिरता है। फिर से जोड़ो,
ये होता है बुद्ध धम्म। तो एक भी तोड़ना नहीं है सील को, एक भी नहीं, कदापि नहीं। लिखना है, हाँ तोड़ दिए, ये तोड़ दिए, ये तोड़ दिए, ये तोड़ दिए, ये तोड़ दिए। कई कई दिन तो मेरे पास है एक पूरा पेज ही हो गया। सच बात है। ऐसा नहीं कि मैं कल फिर कहूंगा आज मैं नहीं करने वाला हूं, क्या पता है। चोरी तो इतनी आदत हो गई है चोर को, पता नहीं है कल क्या चोरी करेगा। कुछ भी करने दो, लिख लो, लिख लो। जिस दिन 14 दिन खाली रहेगा उसी दिन आपको सखाई दिट्टी चला जाएगा। सर 14 के आप बार बार जिक्र जो कर रहे हैं, मतलब ये कहीं सूत्रों में क्या ये है क्या कि 14 ईमानदारी से अगर करोगे ये पूरा, तो 14 दिन में ये पूरा व्यक्ति से लेके पटी जाएगा, पूरा पटी अनुभूति के स्तर पे उतरेगा। ये किसमें है? नंबर 14 दिन की मैं बात कर नहीं, मैं 7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि 14 दिन का मतलब वो होता है, मैं 7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 7 × 2 14, 21, 28 ऐसा। तो अगर आप महासतिपट्ठन पढ़े हैं तो लास्ट में क्या है? 7 साल, 7 महीने, 7 दिन, है ना? तो मैंने उसको लिया है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। अगर मैं झूठ कहता हूं तो मुझसे झूठ कहने वाला कोई आदमी है ही नहीं है। मैंने जो प्रैक्टिस किया है मैं उसी की तरह से प्रैक्टिस किया है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अनाप शनाप कह रहा हूं। महासतिपट्ठन सूत्र में लास्ट में है, तो मैं उसी को लेके, उसी को आधार करके मैंने एक और ऐड किया है कि मैं उतना लेवल पे नहीं हूं कि 7 दिन में हो जाए, तो मैंने उसको 2 हफ्ता बना दिया। और 3 हफ्ता भी हो सकता है, 4 हफ्ता, सारे 7 दिन का ही है ना, 28 दिन हो गया। फिर 28 दिन ले सकता हूं, मतलब 56 डेज हो गया। अभी 8 हफ्ते हो गए। पर मतलब मेरा बुक जो है ना, रोज लिखूंगा, 28 दिन लिखूंगा। वे साले तुमने 28 दिन तोड़ा है। तो मन जब भी ये देखेगा ना, रोना चालू कर देगा। मैं अभी नहीं करने वाला, बंद हो जाएगा उसको, डरेगा। क्योंकि दुच्चरित विपाक सूत्र देख देख के वो आपका, मेरा जो बुक है ना वो कम होता जाएगा। पहले मैंने 10 आइटम था, 10 से 9 हो गया, 8, 7 ऐसे निकलते जाएगा। एक दिन आएगा कुछ भी नहीं है उसमें, पेज पूर्ण खाली है, सवेरे से रात तक। दूसरे दिन खाली है, तीसरे दिन खाली है। 7वां दिन जब भी आता है, भीम रेड्डी जी, 7वां दिन जब भी आता है, उस दिन आप अनंत लक्कन सूत्र पढ़िए। आप देखिए मजा कैसा बैठता है। मराठी में है, कौन सा भी लैंग्वेज में है, कुछ भी पता नहीं है, पढ़ेगा। आप खुद कहेंगे मैंने इसको इतनी बार पढ़ा था, अभी इस बार मेरे समझ में आ गया, वो पटी पत्ती हो गया। और जैसे ही आप इसके ऊपर रिफ्लेक्शन चालू कर देंगे, सोचना चालू कर देंगे, पटिवेदन हो जाएगा। सील नहीं है तो समाधि नहीं होगा, ये समाधि है। पूछना था कि कर्म जो है 3 प्रकार के, जो समझ, एक शारीरिक कर्म है, वाचिक है और मानसिक है। मान लीजिए कि मेरे मन से भी कोई व्यभिचार होता है तो मेरे सील का भंग होता है या नहीं होता? होता है, होता है। हाँ, तो पहले उसका है, उसको भी होता है।
हाँ उसको भी देखना है। तो वो देखिए, हमें गुस्सा जो आ रहा है वो मन का है, वो काय का नहीं है, वची का भी नहीं है, वो मन से चालू हुआ है। उसको करने के लिए पहले हमें ये करना पड़ेगा। ये दुश्चरित्र विपाक सूत्र से क्या होता है कि डर का माहौल पैदा हो गया मन में। अभी डर नहीं हो रहा है, मन में डर नहीं है, वो सोचता नहीं है कि इसका नतीजा मेरा क्या होगा, वो डर नहीं है। जब भी हम इसको लेके आएंगे तो डर आ जाएगा, जब भी डर आएगा तो वो स्लोली छोड़ देगा उसको। तो बुक में आप बुक रखिए, आप देखिए आपका कितना कल्याण हो जाएगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि स्लोली वो कब होता जाएगा। आप खुद आपको एहसास हो जाएगा। सब्जी वाले से लेकर आपका रवैया पूरा चेंज हो जाएगा। अभी आप क्या कहते हैं, पैसे के बारे में नेगोशिएट करना छोड़ ही देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये करने से मुझे नरक में जाना है। उसका कर्म है, वो गलत कर रहा है तो उसका प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। लेना है तो लेता हूं, नहीं लेना है तो आगे जाता हूं। उसके साथ क्यों बहस करना है। 5 रुपए में दे दो, वहां पे इतने पे दे रहे हैं, यहाँ पे इतने पे आप कह रहे हो, वो सब वहां से चालू होता है। हमारा दुर्बुद्धि वहां से चालू होता है। मिलिंद जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर। ठीक है, तो फिर बंद करें आज हाँ का? सर, बिल्कुल। ठीक है, फिर तो कल मिलेंगे, यही करेंगे। कल बुक लेके आइए, बिल्कुल बिल्कुल। कल अपना बुक में लिख के आइए। मैं भी लिख के आता हूं, मैंने कितना झूठ कहा है, ये कहा है, वो कहा है, मैं भी लिखता हूं। आप पूछेंगे विलास जी आपका तो खाली होना चाहिए, देखते हैं। मैं भी आप ही की तरह करूंगा, चाहे मैं जहां पर भी पहुंचा हूं, वो अलग चीज है, पर मैं आपके साथ हूं। ओके। ठीक है, तो कल बुक से आप कहेंगे कितना तोड़ा है, फिर देखेंगे क्या करना है। तो कल पूरा आपको होशियार रहना पड़ेगा। दुश्चरित्र विपाक पढ़ते रहो, सुनते रहो। मतलब सुनते रहो मतलब ये है कि मन में डालते रहो कि नरक है, त्रिचक योनि मतलब प्राणी का, और प्रेत। मनुष्य बनेंगे तो खराबी है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है बुद्ध भगवान ने। ये मुझे याद करना है, बस इतना ही है। थोड़ा बुक में लिख दिया, बस उतना ही, ज्यादा नहीं करना है। बहस नहीं करना है अपने आप से, नहीं नहीं करना नहीं चाहिए था, उस साले ने ऐसा कह दिया, उसने ये कर दिया, ये कर दिया। वो सब्जी वाले वो भी ठीक नहीं कहा ना, उसने भी झूठ कहा, कहने दो ना, मुझे क्या करना है उससे। वो झूठा मक्कार निकला तो होने दो, मुझे क्या करना है उससे। सिर्फ लिखना है, बस उतना ही करना, कुछ भी नहीं करना है। झूठ कह दिया, वो भी डिटेल में कुछ नहीं लिखना है कि इस कारण उस कारण उस कारण में झूठ कहना पड़ा, इस कारण उस कारण उस कारण मुझे मुझे गुस्सा होना पड़ा, इस कारण उस कारण से मुझे चोरी करनी पड़ी, चोरी किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, या नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो कल हमारा बुक, कलम और हम। हाँ जी, राजेंद्र जी बताइए। हाँ सर जी, मैं कल से सब्जी पटान जा रहा हूँ। हाँ 7 दिन नहीं रहूंगा ग्रुप में। हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो जब भी आप आएंगे फिर से करेंगे आपके लिए। जी सर, जी सर। नो प्रॉब्लम, जाके आइए, आपका कल्याण हो। साथ साथ। तो
ये करेंगे कल से, बुक और कलम और हम मतलब बुद्ध धम्मा। देखते हैं इसका इलाज कैसे करना है। मैं भी अपना बुक लेके आता हूँ। Yes. ठीक है, Yes, sir. फिर मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। हाँ,